Assalamu alaikum sir, I am Muhammad Rian from Tal Public School and College 22 MA Kushal. With your permission, may I ask something? How does digestive system convert the food into nutrients for the body? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your question, Rehan. Rehan, had you told the name of your class, it would have given me an idea how much explanation do I need to give to explain your question, which is how does our food get digested and converted into nutrients in our body? तो मैं आपको समझाता हूँ ये टॉपिक इज़ अ बिग and it cannot be covered in one video. It may take me 3-4 videos. So this is part 1 of my lecture. इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डाइजेशन किस तरह होती है, फूड के क्या पार्ट्स हैं, और फिर अगले लेक्चर्स में मैं बाकी की चीज़ें जो हैं वो कवर करूंगा. सबसे पहले तो you should know that there are 6 major types of nutrients in our food. They are called essential nutrients. So those 6 major types of our foods, or 6 major components of our foods, are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. Out of these 6 components of our food, 3 are macronutrients, and 3 are micronutrients. Now, why are called they macronutrients or micronutrients? Macronutrients are carbohydrates, proteins, and fats. They are called macronutrients because they are needed in larger amounts in our bodies. And they are too large. Macronutrients are too large and complex. And they require digestion through enzymes. And they can be absorbed in the small intestine of our body. Okay? So these macronutrients are 3. They are carbohydrates, proteins, and fats. Now, the micronutrients, again, they are called micronutrients because they are needed in smaller quantities in our body. They are very small and simple substances. They do not need enzymes to be digested. Macronutrients need enzymes to be digested. These micronutrients do not need enzymes to be digested. They are absorbed in our body directly. No digestion process is required. So they are vitamins, minerals, and water. Now, I will take one by one. First, I will take carbohydrates, how carbohydrates are digested. Then in my next video, I'll discuss about the proteins and fats, because the rest 3, vitamins, minerals, and waters, they are absorbed directly. They do not require any digestion. So I'll deal mainly with carbohydrates, proteins, and fats. Now, what are carbohydrates? Carbohydrates होते क्या हैं? They are organic compounds. They are organic molecules. ये sugars होती हैं. Organic molecules या organic compound उसको कहते हैं जिस compound में, जिस substance में कार्बन जरूर हो और साथ हाइड्रोजन भी हो, और फिर उसके साथ यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन भी होती है, मगर उसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ होना जरूरी होता है. वो तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये तीन एटम्स मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और ये किस रेशो में मिलते हैं उसका एक फार्मूला होता है। ये कार्बन कार्बन को लिखते हैं CX, ब्रैकेट में H2O वाटर, और फिर ब्रैकेट के बाहर Y लिख देते हैं हम यहां बेस पे Y। ये X भी नंबर है और Y भी नंबर है। कार्बन के अगर 6 एटम्स हैं तो C6 H2O, और यहां भी हमने 6 लिख दिया, तो यहां पे 6 लिख दिया तो H2 कितना बन गया H12, और O कितना बन गया 6, तो C6H12O6 क्या बन गया ग्लूकोज। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस रेशो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में चूंकि ये वाटर है H2O और ये कार्बन है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट वाटर, कार्बन तो वो एलिमेंट है ये, ठीक है। इसीलिए ये फार्मूला भी इसका इस तरह लिखा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी एंड दे आल्सो स्टोर एनर्जी इन देम एंड दे आल्सो हेल्प build structures in our body. Now, there are 3 types of carbohydrates. They are called monosaccharides, first type, disaccharides, second type, and polysaccharides, third type. What is meant by saccharide? Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Saccharide sugar को कहते हैं. The other name of sugar is saccharide. Mono, you understand, mono means one, di means two, poly means more than two, many. So monosaccharide, one sugar, one molecule of sugar, simplest sugar, monosaccharide, one unit of sugar, one molecule of sugar. Disaccharide, two molecules of sugar, two monosaccharides combined to make a disaccharide. Then polysaccharide, many monosaccharides, thousands, hundreds of monosaccharides, a long chain of monosaccharides. They are linked through a bond. That bond is called glycosidic bond. आपके लेवल का नहीं है, आप छोड़ दें इस बात को। बहरहाल वो एक बॉन्ड से लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसको कहते हैं, और वो बॉन्ड से thousands और hundreds of those smallest molecules जो monosaccharides हैं वो मिलते हैं और फिर polysaccharide बनता है। तो monosaccharides में they are very simple sugar, they are simplest molecules, they are single sugar molecules. They are small, very small, they are very sweet, and they dissolve very easily in water. इनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ग्लूकोज, ये मोनोसैकराइड्स बता रहा हूं मैं आपको जो बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मैं सिर्फ वही बताऊंगा। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं मगर जो आपके लिए आपकी बुक्स में आपको पढ़नी पड़ेंगी मैं सिर्फ वो बताऊंगा। तो मोनोसैकराइड्स में पहली एग्जाम्पल ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को आप जानते हैं कि ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है वो फिर बाद की बात है, जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज कैसे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो ग्लूकोज है इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, C6 कार्बन 6 H12O6। ये इधर देखें, ये है C6H12O6,
ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, अब आप देख लें कि इसको अगर मैं C6 और इसको H2O लिख के साथ इधर 6 लिख दूं तो यही फार्मूला बन जाता है। तो यही मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया था मोनोसेक्राइड्स का। ठीक है, तो पहली एग्जांपल थी ग्लूकोज, जो कि मेन शुगर होती है हमारे ब्लड में, जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमें फ्रूट्स से मिलती है, फ्रूट्स, तो उसका भी यही फार्मूला है C6H12O6, क्योंकि मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड का फार्मूला यही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट होता है, यानी कार्बन के एटम हाइड्रोजन के साथ किस तरह अटैच हैं, वो ग्लूकोज में डिफरेंट तरीके से अटैच हैं, फ्रुक्टोज में डिफरेंट तरीके से अटैच हैं। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जितने कार्बन के एटम ग्लूकोज में है उतने ही फ्रुक्टोज में, जितने हाइड्रोजन के एटम ग्लूकोज में है उतने ही फ्रुक्टोज में, और जितने ऑक्सीजन के एटम ग्लूकोज में है उतने ही फ्रुक्टोज में है। मगर जब वो कंबाइन करते एक दूसरे के साथ तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट में कंबाइन करते हैं, इसलिए एक मोनोसेक्राइड को हम ग्लूकोज कह देते हैं, एक को फ्रुक्टोज कह देते हैं, और फ्रुक्टोज फ्रूट से मिलती है। तीसरी जो सिंपलेस्ट शुगर है मोनोसेक्राइड, जो आप पढ़ेंगे, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो आपको मिल्क से मिलती है, दूध से, वो भी सिंपलेस्ट शुगर है और उसका भी यही फार्मूला है, क्योंकि मोनोसेक्राइड है तो फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये वो शुगर्स हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ये याद रखना, ये न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आता है डाइसेक्राइड्स। डाई का मतलब है टू, सेक्राइड का मतलब है शुगर, टू शुगर। अगर दो मोनोसेक्राइड्स लिंक करें, एक दूसरे के साथ मिल जाएं, बांड बना लें, तो वो डाइसेक्राइड बन जाता है। डाई का मतलब टू, यानी दो ग्लूकोज अगर मिल जाए तो एक डाइसेक्राइड बन जाएगा, और अगर एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिल जाए तो फिर भी डाइसेक्राइड बन जाएगा, और अगर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिल जाए तो फिर भी डाइसेक्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना दे आर फॉर्म्ड बाय अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये कैसे बनते हैं देखें, आपको पता है सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर, जो आप चीनी खाते हैं, जो केन शुगर है या बीट शुगर है, जो गन्ने से मिलती है आपको, वो शुगर जो है उसको सुक्रोज कहते हैं, और उसका फार्मूला आपको पता क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, मैं लिख देता हूं जल्दी से, ये होता है C12H22O11। अब आप इसको गौर से देखें, आप कहेंगे कि ये C12 है तो H जो है ये 22 तो नहीं होना चाहिए था, ये तो 24 होना चाहिए था, क्योंकि 12 को 2 से ज़रब देंगे तो 24, और ये 11 तो नहीं होना चाहिए था, ये 12 होना चाहिए था, क्योंकि जो फार्मूला मैंने बताया था कि ये फार्मूला है मोनोसेक्राइड का और डाइसेक्राइड, तो फिर दो जब मोनोसेक्राइड मिलेंगे C6H12O6, जब दो मिलेंगे तो C12H24 बनना चाहिए और O12 बनना चाहिए। ठीक है, मगर ये क्यों इस तरह बना? इसलिए कि जब दो मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करते हैं केमिकली, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, H2O निकल जाता है, यहां से H2O निकल गया है, दो हाइड्रोजन के निकल गए, इसलिए ये 22 है, 24 नहीं है। एक ऑक्सीजन का निकल गया H2O, इसलिए ये 11 है, 12 नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि डाइसेक्राइड, जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है,
और वो ये डाइसेक्राइड का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, जो भी डाइसेक्राइड हो उसका जनरल फार्मूला ये होगा। अब डाइसेक्राइड जो है वो तो रिलेटिवली ये भी सिंपलर शुगर है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है डाइजेस्ट करनी, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाती हैं हमारी बॉडी में और ये ग्लूकोज वगैरह बन जाती है, फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए ये इतनी कॉम्प्लेक्स शुगर ये भी नहीं है डाइसेक्राइड जो है। मसलन सुक्रोज जो मैंने कहा, टेबल शुगर, जो आप आम चाय में डाल के पीते हैं, जिससे आप मीठी चीजें बनाते हैं, वो डाइसेक्राइड है। अच्छा, अब वो डाइसेक्राइड जो है जब वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, उसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन, उसका रिएक्शन होता है, एंजाइम एक्ट करता है उसके ऊपर और वो उसको तोड़ता है, तो उसके जो दो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मोनोसेक्राइड जो दो बनते हैं, वो हैं एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। याद रखना, सुक्रोज के ब्रेक डाउन से एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रुक्टोज बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, ये मिल्क में होती है, मिल्क में होती है। जब आप मिल्क पीते हैं तो उसके अंदर जो शुगर है वो लैक्टोज है, और जब ये ब्रेक डाउन होती है लैक्टोज आपके बॉडी में जाकर, जब ये ब्रेक डाउन होती है तो फिर ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं इसके मोनोसेक्राइड के। वो कौन से हैं? जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उसमें उसके दो जो मोनोसेक्राइड बनते हैं, वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनता है। दो ग्लूकोज नहीं बनते, एक ग्लूकोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है। मगर जब माल्टोज ब्रेक डाउन होती है तो उसके दोनों मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के बनते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये मिलके माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये मिलके सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया डाइसेक्राइड्स। अब मैं आता हूं पॉलीसेक्राइड्स पे। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड शुगर, मैनी शुगर। मैं बता चुका हूं, जब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स of smallest units, monosaccharides, they are linked together through glycosidic bonds, they make polysaccharide। अब पॉलीसेक्राइड में आपने स्टार्च देखा, स्टार्च सुना होगा आपने। ये आप जो 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 रोटी खाते हैं, फ्लावर, आटा, व्हीट, उसमें स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, पोटैटो उसमें भी स्टार्च होता है। ये पॉलीसेक्राइड है, ये इतनी आसानी से हजम नहीं होता, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, दे आर नॉट स्वीट। जब आप खाते हैं तो ये मीठे नहीं लगते आपको, ये बाकी में तो मिठास आपको महसूस होती है ना, मोनोसेक्राइड में तो बहुत ज्यादा होती है, डाइसेक्राइड में भी दूध आपको मीठा लगेगा, सुक्रोज चीनी आपको मीठी लगेगी, मगर पॉलीसेक्राइड जो है दे डू नॉट फील स्वीट। जब आप खाते हैं तो आपको मीठे नहीं लगते ये। तो इनमें ये जो माल्टोज मैं बता रहा हूं आपको ये माल्टोज कहां से आती है? सुक्रोज तो आ गई गन्ने से, और लैक्टोज आ गई दूध से, मिल्क से। तो माल्टोज कहां से आती है? माल्टोज है जब आप स्टार्च खाते हैं, यानी आलू खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, राइस खाते हैं और फ्लावर खाते हैं, तो स्टार्च जाता है, तो आपके अंदर मुंह में जाकर और स्टमक में और आगे इंटेस्टाइन में जाकर उसकी स्टार्च की जब डाइजेशन होती है तो सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है, तो माल्टोज बनती है। उसके अलावा और भी चीजें बनती हैं, कुछ थोड़ी चेन्स बनती हैं, उसको डेक्स्ट्रन कहते हैं, मगर उसमें से माल्टोज सबसे पहले माल्टोज बनती है। तो माल्टोज आपको स्टार्च से मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कैसे डाइजेशन कैसे होती है। आपका जो क्वेश्चन था कि ये न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं फूड के, अब ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स अभी सिर्फ समझा रहा हूं
कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें कहां से मिलते हैं, राइस, पोटैटो, व्हीट वगैरह से। तो अब ये हजम कैसे होते हैं याद रखना, डाइजेशन आपके ब्लड में जो होती है इनकी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट है ना, जेजुनम, जेजुनम मिडिल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी इनर साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको विलाई कहते हैं। और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं, उनको कहते हैं माइक्रोविलाई। वो माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा होती हैं, वो ब्रश की तरह की उनकी शक्ल बन जाती है, तो उनको बॉर्डर ब्रश कहते हैं, बॉर्डर ब्रश। ये वो जगह है जहां से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और कौन से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं? सिर्फ ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब होगा और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होगा। डाइसेक्राइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, सुक्रोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, माल्टोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो चीज एब्जॉर्ब होगी वो मैंने आपको तीन चीजें जो बताई हैं इस शक्ल में आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। और कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर के ऊपर, जेजुनम के अंदर वो सेल्स जो हैं, उन सेल्स का नाम है एंटेरोसाइट्स। वो जो माइक्रोविलाई और विलाई बनाते हैं, एंटेरोसाइट्स उनको कहते हैं। वहां से, उस जगह से आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ब्लड में एंटर होता है, वहां से ब्लड में एंटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो फूड है ये स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स बनती है और फिर ब्लड में एंटर होती है और आपकी बॉडी को मिलती है और एनर्जी देती है। यस, मैं पॉलीसेक्राइड्स का आपको बता रहा था। पॉलीसेक्राइड में एक तो स्टार्च मैंने आपको बताया और एक फिर ग्लाइकोजन आपने सुना होगा। स्टार्च तो मैंने बताया ना, पोटैटोज, राइस और व्हीट वगैरह में होता है और ये एनर्जी स्टोर करता है। स्टार्च जो है ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल स्टार्च है, लिवर में, मसल्स में, हमारे भी लिवर में होता है ग्लाइकोजन, तो ये भी पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज आपने सुना होगा, जो सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो सेलुलोज की बनी होती है, तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन मिसालें मैंने आपको पॉलीसेक्राइड की बताई हैं, तीन ही मैंने डाइसेक्राइड की बताई हैं और तीन ही मैंने मोनोसेक्राइड की आपको बताई हैं। और अब मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से टूटते हैं। सबसे पहले आप खुराक मुंह में लेके जाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आज स्टडी कर रहे हैं। आपने स्टार्च खाया, आपने रोटी खाई, उसमें फ्लावर की रोटी है, वो व्हीट है। आपने चावल खाए, राइस है। आपने पोटैटो खाया, और भी चीजें हैं जिनमें स्टार्च है। जब ये स्टार्च आपके मुंह में जाता है तो आपके मुंह में एंजाइम्स जो होते हैं उनको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्पेसिफिकली आपके स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने में मदद देता है। वो जब मिक्स होता है स्टार्च के साथ तो इसको तोड़ता है तो माल्टोज बनाता है, विच इज डाइसेक्राइड। आपके मुंह में ही, ये देखें, ये वाहिद चीज है जो आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है। स्टार्च आपके मुंह में ही माल्टोज और डेक्स्ट्रन वगैरह बन गया। अब ये सलाइवरी अमाइलेज जो था ये आया कहां से? आपके मुंह के अंदर तीन जगह पे ये प्रोड्यूस होता है। सलाइवा जो थूक है आपका, सलाइवा तीन जगह से प्रोड्यूस होता है। एक होते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स, ये यहां पे होते हैं पेरोटिड ग्लैंड। एक होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपका मैंडिबल है ना, इसके नीचे होते हैं। और एक होते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सब लिंगुअल जुबान के नीचे। तो ये तीन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहां से सलाइवा निकलता है और उस सलाइवा के अंदर ये एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कि स्टार्च के साथ रिएक्ट करके स्टार्च को माल्टोज बनाता है। अब ये आपके स्टमक में चली गई और कुछ ना कुछ अमाइलेज स्टमक में भी काम करता है, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ वहां पे भी काम करता है। अब आपके
मैदे से, स्टमक से खुराक आगे चलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है उसको डिओडिनम कहते हैं। अब वहां पे याद रखना, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर रहे हैं आज। वहां पे एक और अमाइलेज आया, उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैंक्रियाज आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो कि आपके ये स्टमक के नीचे होता है। यहां से एक डक्ट आती है जो उस एंजाइम को लेके आती है और ड्यूडिनम में खुलती है, वहां पे वो एंजाइम डाल देती है। उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। मुंह में कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। ये कौन सा है? पैंक्रियाटिक, जो कि पैंक्रिया से निकलता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है, ये बाकी का जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज बना देता है। अब ये माल्टोज जो है आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम से निकल के अगला पार्ट जेजुनम है, वहां में चलेगी। जेजुनम जो है, जेजुनम में ये जो मैंने आपको बताया था कि वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की साइड पे जो विलाई या माइक्रो विलाई होते हैं जिनको ब्रश बॉर्डर्स कहते हैं, वहां पे एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है लोकली, उसको कहते हैं माल्टेज। माल्टेज। अब जब माल्टोज वहां पहुंचती है तो माल्टेज उसके साथ रिएक्ट करके उसके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देता है। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना देता है। और जब वो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन जाते हैं तो वहीं पे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है। इसी तरह जब आप शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, सुक्रोज, तो वो चीनी भी वहां पे जेजुनम में, जेजुनम जो मिडल पार्ट है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके ब्रश बॉर्डर्स पे, माइक्रोविलाई पे एक एंजाइम पैदा होता है सुक्रेज। वो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज के साथ रिएक्ट करके उसके दो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये वहीं से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है लैक्टोज। जब आप दूध पीते हैं तो उसके अंदर जो शुगर है वो भी वहीं पे जाती है माइक्रोविलाई जेजुनम में, ब्रश बॉर्डर के ऊपर, और वहां पे एक एंजाइम पैदा हो रहा है लैक्टेज। ये लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके उसको ब्रेक करता है और दो मॉलिक्यूल बनाता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी फूड का वो पार्ट जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, फूड से डाइजेस्ट होके ये न्यूट्रिएंट स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स बन के आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होके आपकी बॉडी को मिल जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था मेरी इस वीडियो का, आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आगे जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।